Hello guys, how are you all? Hope you are all very good. And this is Anuj, and today I'm going to have a discussion with you all on information utility. As you can check out on my screen, we will be knowing today कि information utility है क्या and information utility की क्या purpose है. Guys, one thing I would like to make you clear that information utility, in short, we know this word information utility as IU. So in short, we will be calling IU. This is information utility. IU stands for information utility. Information utility. I am very much aware that this video is only going to helpful for those people, for those students, for those professionals who is new in insolvency and bankruptcy domain, because this term is information utility is very much popular for all those my fellow colleagues who are working in IBC domain, but the students and the new professionals who are entering in the insolvency and bankruptcy framework, they might not be aware about the information utility. So this video is going to for uh, those who is not having any idea about the information utility. And in this video I am also not going to have a very technical discussion on the statutory provisions of the insolvency and bankruptcy code. Simply I will be having a broad discussion, a general discussion pertaining to the information utility, and the purpose of this discussion is to just create awareness on the information utility, because in recent days I was getting so many queries from my friends and some students as well. They were asking what is the information utility and how the information utility function in India, and what are the objective of the information utility, why it came into existence. So there were so many questions of my friends and some students as well. That's why I thought I should have a very general video. In that video I can detail about the outline of the information utilities and all about the basic discussion of the information utility. That's why I am recording this video. So uh, जिनको इसके बारे में आइडिया होगा उनको थोड़ा सा ये काफ़ी जनरल डिस्कशन लगेगी, बट यस सटनली जो न्यू लोग हैं, जो न्यू प्रोफेशनल्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो कि अभी अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में काम करना शुरू किया है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है. सो प्लीज़ हैव अ लुक ऑन द presentation. First, information utility, right? In short, it stands IU. Information utility is a concept introduced under Insolvency and Bankruptcy Code IBC 2016. देखो, एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की कॉन्सेप्ट्स हैं वो आईबीसी कोड जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंदर हमारे को देखने को मिलती है. तो इसकी जो प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू ये कह सकते हो कि मदर एक्ट है जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का, वो कौन है? आईबीसी कोड है. तो IBC code is itself not a too much old provisions in India. It's not a too much old concepts in India, although the structures and the framework pertaining to the insolvency and bankruptcy code was in India. But जिस तरीके से आईबीसी को डिजाइन किया गया, दैट इज itself a very much innovative concepts, and the object of the IBC is to just resolution of the stressed company in a very time bound manner is quite new. तो जो आईबीसी कोड है वो 2016 में आया, और इसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में हमारे को इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से रिलेटेड प्रोविजंस देखने को मिलती है. तो सडनली एक बात तो तय हो गई है कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की जो कॉन्सेप्ट है इट्स सेल्फ वेरी न्यू, राइट? नाउ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो है सर्व्स एज द रिपोजिटरी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेपोजिटरी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन.
है ना, रेपोजिटरी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक ऐसी इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी कंपनी जिसका पर्पस, जिसका मकसद ही क्या है, टू एक्ट एज अ रेपोजिटरी, जहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सके। वैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज वेरी मच रिलायबल, ऑथेंटिक, एक्यूरेट, है ना, करेक्ट, वैसे इंफॉर्मेशन की एक रेपोजिटरी हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या है, एक स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस है, एक वेयर हाउस है, जहाँ पे हम लोग गुड्स ना रख करके, सामान ना रख करके हम लोग क्या रखते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं। कैसे इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसमें पैसे की लेन देन, ठीक है, उससे तमाम जानकारी हम लोग वेरीफाइड तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से, एक्यूरेट तरीके से, करेक्ट तरीके से स्टोर करते हैं। दैट इज कॉल्ड द रेपोजिटरी। सो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या है, एक रेपोजिटरी है ऑफ स्टोरिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। गाइस, ये टर्म्स आप लोगों को क्लियर होगा। आप इसको बहुत ही जनरल तरीके से समझो, एक लेमैन लैंग्वेज में समझो कि एक वेयर हाउस है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या है, एक वेयर हाउस है। वेयर हाउस में हम क्या करते हैं, गुड्स रखते हैं, बट इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास हम क्या रखते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रखते हैं। ठीक है, तो होप दिस इज क्लियर नाउ। इट सर्व्स एज द repository of the financial information, facilitating the resolution of insolvency and bankruptcy cases. Facilitating the resolution of insolvency and bankruptcy cases by providing verified, point to be noted, verified, reliable फाइनेंशियल डेटा। ये क्या करती है, फैसिलिटेट करती है रेजोल्यूशंस। जो स्ट्रेस्ड कंपनी होती है ना, जो डेट ट्रैप में फंस चुकी है, उस कंपनी को रिजॉल्व करने में ये हेल्प करती है, वहां पे ये फैसिलिटेट करती है बाय प्रोवाइडिंग वेरीफाइड, रिलायबल फाइनेंशियल डेटा। यहाँ पे वेरीफाइड क्यों कहा जा रहा है, देखिए, एक सारा पिक्चर्स आगे क्लियर हो जाएगा, बट एक जो एस्पेक्ट्स हैं इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, कि जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ना, वो वेरीफाइड होती है। वो बोथ द पार्टी, बोरोवर और लेंडर, दोनों से वेरीफाइड तरीके से आती है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आती है। जो जो लेंडर है वो इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सबमिट करेगा, जो बोरोवर है वो इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा, और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी भी वहाँ पे वेरी इंटेंसिव तौर पे उसको देखती है, चेकआउट करती है और उसको वेरीफाई करती है, देन जाकर के इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करती है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को भी यदि लगता है कि इंफॉर्मेशन जो उनको दी जा रही है, जो इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, लेंडर सबमिट कर रहा है किसको, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, उसमें कोई डेविएशन है, वो जो डॉक्यूमेंट्स दी जा रही है उसके कंफर्मिटी में नहीं है, तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी विल गो एंड आस्क questions to the lender that this information is not consistent with the documents is being submitted on the information utility. So information utility itself verify the informations, ठीक है, और दोनों जो पार्टी है, बोरोवर लेंडर, वो तो वेरीफाई करते हैं। सो कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है दैट इज वेरी मच वेरीफाइड, राइट, एंड रिलायबल होती है, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, राइट। तो दिस इज the primary objective of an information utility is to ensure transparency, efficiency, accuracy in the insolvency resolutions. Guys, please note, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है ना, उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, टू इंश्योर करना ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता हो, है ना, पारदर्शिता को इंश्योर करना, एफिशिएंसी, एफिशिएंट हो, ठीक है, एंड एक्यूरेसी भी हो। जो इंफॉर्मेशंस दी जा रही है वो ट्रांसपेरेंट हो, कुछ हिडन नहीं हो, बिकॉज यहाँ पे जो वायर, जो बोरोवर है, जो लेंडर है, वो दोनों पार्टी इन्वॉल्व है, तो देयर इज वेरी मच ट्रांसपेरेंसी इन लेन देन। जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी है, कोई कुछ कह दिया और उस चीज को एकदम गुप्त रूप से हम लोग स्टोर कर लिया और उसको जो आगे वाले पार्टी को डिसेमिनेट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बोरोवर है, जो लेंडर है, बोथ द पार्टीज आर इन्वॉल्व। Lender will submit the information, borrower will verify the information. If there is a deviation in the information submitted by the lender, then borrower will certainly object
that this is incorrect, यहाँ पे ये चीज़ ऐसे नहीं है, then lender will submit their response to that objections and then finally जो चीज़ें हैं दोनों एक कॉमन कंसेंसस पे आएंगे एंड देन जा करके इंफॉर्मेशन यूटिलिटी उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी. सो वी कैन से दैट द इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल ऑन द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इज इटसेल्फ वेरी मच ट्रांसपेरेंट. और वो एफिशिएंसी भी होनी चाहिए कि एफिशिएंसी इन द सेंस कि इन जो बोरोवर्स जो लेंडर्स हैं, बोरोवर्स जो लेंडर्स है इंफॉर्मेशन सबमिट कर रही है तो वो अच्छे तरीके से सबमिट कर पा रहा है एफिशिएंट मैनर में. ऐसा नहीं कि टू मच टाइम टेकिंग प्रोसेस हो, सबमिट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं हो रही है, कुछ इशू आ रही है, टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, वो सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए. उसी तरीके से जो बॉरोवर सब इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर जाए तो वो इंफॉर्मेशन को स्मूथली विदाउट वेस्टिंग टाइम इंफॉर्मेशन को क्या करे, वेरीफाई कर सके. ठीक है, तो एफिशिएंसी भी होनी चाहिए एंड एक्यूरेसी. जो इंफॉर्मेशन वहाँ पे दी जा रही है वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो लेंडर है वो भी प्रोवाइड करेगा, बोरोवर्स को उसको वेरीफाई करना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ. तो कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी इन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. अब गाइस इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में कैसे ये सारी चीज हेल्पफुल होती है, तो यस होती है, बिकॉज सारा का सारा खेल जो है इंसॉल्वेंसी में डेट ट्रैप का है. कंपनी डेट ट्रैप में फंस जाती है और उस डेट ट्रैप से कंपनी को रिजॉल्व करना है. तो हमारे को ही यहाँ पे देखना होता है कि जो डेट की दलदल में कंपनी फंसी हुई है, क्या वो दलदल इटसेल्फ उसकी क्या कह सकते हो, उसकी ग्रेविटी कितनी है, वो कितना ज़्यादा सही है. बिकॉज यदि जब कंपनी इंसॉल्वेंसी में आती है तो प्राइमरीली क्या होता है, क्लेम की वेरिफिकेशन होती है, क्लेम आती है. आईआर जो आईआरपी है वो स्टेक होल्डर से, क्रेडिटर से क्लेम इनवाइट करती है, क्लेम्स आ जाता है, क्लेम का वेरिफिकेशन होता है. तो क्लेम इटसेल्फ इज अ डेट, और डेट को वेरीफाई करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की सहारा होती है. यदि हमारे पास जो डेट आ रही है, इफ वी कैन वेरीफाई दैट इंफॉर्मेशन दोज क्लेम्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, और वहाँ से यदि वो चीज़ें मैच करती है तो कहीं ना कहीं आईआरपी के लिए भी वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है. इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाती है और एफिशिएंट मैनर में हम इंफॉर्मेशन को डेट को वेरीफाई कर सकते हैं. तो कह सकते हो कि जो तमाम ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का, वो कहीं ना कहीं जो डेट ट्रैप कंपनी होती है, जो फाइनेंशियली स्ट्रेस कंपनी होती है, जो इंसॉल्वेंसी के अंदर रेजोल्यूशन में चल रही है, उसको रिजॉल्व करने का मकसद होता है. राइट, होप कि हमारे को इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के बारे में ऑब्जेक्टिव्स तो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा. राइट, now we are going to have a discussion on the statutory provision of the information utility. एक हमारा स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क क्या है गाइस, आपको जैसे कि पता है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है वो बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है, और इसकी जो एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में ही मिलेगा. ठीक है, तो जब आईबीसी आया था तभी जाकर के इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की कॉन्सेप्ट भारत में इंट्रोड्यूस किया गया. तो नाउ इट्स वेरी मच श्योर दैट कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की कॉन्सेप्ट्स आईबीसी के थ्रू ही इंडिया में फर्स्ट टाइम आया. नाउ द स्टैट्यूटरी framework of information utility is governed by the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) and the Insolvency and Bankruptcy Board of India Information Utility Regulations 2017. तो हमारा जो IBC है, Insolvency and Bankruptcy Code, इसके अंदर कुछ एक सेक्शंस दी गई हैं pertaining to the information utility, and there is a one regulations which has been introduced by the Insolvency and Bankruptcy Board of India. That regulation itself known as Insolvency and Bankruptcy Board of India bracket के अंदर Information Utility Regulation 2017. So this regulation was introduced in the year of 2017. So now things are very much clear that there are the certain sections as well as the regulations pertaining to the information utilities. And guys, one more thing is that besides these sections, कुछ एक जो sections हैं IBC code का and regulations, and there is another regulatory framework which is regulatory framework कह सकते हो या उसको bylaws कह सकते हैं, which has been information designed by the information utility itself. एक
इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की अपनी बाई लॉज है, उसके इर्द गिर्द इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज अपनी काम को करती है। तो लेट्स हैव अ लुक एट द सम important sections of the IBC code which basically provides important aspects of the information utility. First of all, most important section of the IBC code is that 210. This section provides for the registration and regulation of the information utilities. Guys, जो ये section 210 है वो डील करता है registration of information utility. तो आपको पता है कि information utility की registration कैसे होगा। जो भी entity जो क्राइटेरिया को मीट करती है, आई एम नॉट गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन द क्राइटेरिया कि कौन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी हो सकती है, बस आई एम सेइंग दैट कि जो एंटिटी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी बनने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करती है वो क्या करेगी, एक एप्लीकेशन को लगाएगी अलॉन्ग विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स बाय द आईबीबीआई एंड अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फी। वो इन तमाम चीज़ों के साथ एक एप्लीकेशन लगाएगी कि इसको बोर्ड जो होता है यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब क्या होगा कि वो जो एप्लीकेशन बोर्ड को लगाई गई है, आईबीबीआई को लगाई गई है, आईबीबीआई उस एप्लीकेशन को रिसीव करेगी और उसको कंप्लीटली वेरीफाई करेगी कि क्या जो इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर रजिस्टरिंग एज इंफॉर्मेशन यूटिलिटी लगाई गई है दैट इज करेक्ट, वो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं और अदर कंडीशंस हैं उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो आईबीबीआई शैल प्रोसीड फर्दर फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और आईबीबीआई क्या करेगी, उसको सर्टिफिकेट इशू कर देगी। और इस सेक्शन 210 सब सेक्शन 3 के अंदर जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दी जाती है टू द एप्लीकेंट हु मेड एप्लीकेशन फॉर फंक्शनिंग एज द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। सेकेंडली, एक बार जब इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एप्लीकेशन यहाँ पे लगाया गया है ना फॉर इनकॉर्पोरेटिंग रजिस्टरिंग एज ए इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, उसके बाद फिर सर्टिफिकेट होगा, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दे दी जाएगी, है ना। रजिस्ट्रेशन के बाद इसको रिन्यू भी किया जाएगा जब रिन्यूअल एक्सपायर होती है, बिकॉज द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इज रिक्वायर्ड टू गेट रिन्यूड इट्स सर्टिफिकेट, तो आईबीबीआई उसको भी रिन्यू करेगी सब्जेक्ट टू मीटिंग द कंडीशंस एज स्पेसिफाइड बाय द आईबीबीआई। और रिन्यू करने के बाद जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम टू टाइम रिन्यूड सर्टिफिकेट इशू करता जाएगा, ठीक है। और आईबीबीआई के पास ये भी पावर है कि इन केस जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इज नॉट अधेयरिंग द टर्म एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द registration was granted to the information utility, उसको यदि वो मीट नहीं कर रहे हैं तो उस केसेस में सस्पेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 210, one of the most important sections pertaining to the information utilities, which outlines entire aspects of registrations, renewal of registration and suspension of the registration of the information utilities. Hope this section is very much clear, guys. मैं यहाँ पे sections की in depth तो डिटेल में नहीं बताया, word by word interpretation नहीं किया, but this section is completely यही है कि हमारे को ये डिटेल गाइडलाइंस देता है कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को कैसे रजिस्टर किया जाएगा, क्या प्रोविजन होगा, कौन रजिस्टर करेगा। होप दिस इज क्लियर। नाउ सेक्शन 215, सेक्शन 215 है स्पेसिफाइज द फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। सेक्शन 215 है जो कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की क्या करती है, आउटलाइन करती है फंक्शंस एंड ड्यूटीज। तो हमारे को इसमें क्या है कि फंक्शन एंड ड्यूटीज इसमें क्या होगा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का। आपको जब इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की हम लोग वो पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, the objectives itself make it clear that ki how the information utility will function, what will be the duties of the information utilities, because जो information utility का पर्पस है, फंक्शन है, वो एक एक्यूरेट डेटा को प्रोवाइड करना, ठीक है, जिस डेटा को यूज करके हम लोग डेट ट्रैप जो कंपनी इंसॉल्वेंसी में है उसको रिजॉल्व कर पाए, ठीक है। तो इसमें है कि जो बोरोवर है ना, जो बोरोवर है और जो लेंडर है, ठीक है। लेंडर क्या करेगा, अपनी डेट की इंफॉर्मेशन कहाँ पे सबमिट करेगा, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास सबमिट करेगी। अब वो डेट की इंफॉर्मेशन यूटिलिटी अपने पास एक्सेप्ट करेगी subject to verification of that information by the
बोरोवर, जो बोरोवर है क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा कि यस, जो हमारे अगेंस्ट जो डेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी पे सबमिट की जा रही है, दैट इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है, क्या हमारे जो डेट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट की गई है, वो उसके कंसेंसस में है या नहीं है। तो इन सारे तमाम चीज़ों को देख करके उसको क्या किया जाएगा, अब वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी अपने साइट पे क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, है ना। तो यही है कि डेट इंफॉर्मेशन को कह सकते हो कि इसमें जो फंक्शन है डेट इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना, उसको वेरीफाई करना एंड देन उसको पब्लिश करना, उसके बाद जो रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट है डेट की उसको इशू करना। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि किस किस लोगों से इंफॉर्मेशन यूटिलिटी डेट की इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हो सकते हैं, जो जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, बैंकर्स हो गए, एनबीएफसी होंगे, है ना। दे कैन ऑल्सो सबमिट। अदर देन दैट ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स विल बी द, अदर देन भी हो सकते हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा यहाँ पे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो डिफाइन किया गया है आईबीसी कोड में, दे कैन ऑल्सो सबमिट द इंफॉर्मेशन pertaining to the default on the website of the information utility. So financial creditors as well as operational creditors both can submit the information, or information utility will accept uh, data information from them. बट एक चीज यहाँ पे ये देखने वाली बात ये है कि जो इन्फॉर्मेशन सबमिट किया जाएगा वो सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दी गई है, फॉर्म्स दी गई है इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के द्वारा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी पे इंफॉर्मेशन सबमिट करने के लिए। तो उसी फॉर्मेट, उसी फॉर्म्स के अंदर आपको डेट की इंफॉर्मेशन को क्या करना है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की साइट पे पब्लिश करनी है एंड उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करवाया जाएगा। कौन, जो बॉरोवर है वो वेरीफाई करेगा, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की टीम है वो भी देखेगा और उसको चेकआउट करेगा कि इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है, डेट डॉक्यूमेंट जो सबमिट की जा रही है उसके हिसाब से है या नहीं, एंड देन जा करके वहाँ पे डेट ऑफ डिफॉल्ट की जो रिकॉर्ड है, सर्टिफिकेट है, वो पब्लिश कर देगी। बिकॉज वो सर्टिफिकेट को यूज किया जाना होता है जब भी एप्लीकेशन फाइल की जा रही है, सेक्शन 7 सेक्शन 9, ठीक है, ऑफ द आईबीसी कोड, देन दैट सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट ऑफ डेट शैल बी यूज्ड, बिकॉज उसके बिना इंसॉल्वेंसी स्टार्ट नहीं होगी। तो वो एक रेगुलेशन 4 ऑन जो 6 है हमारा, ऑफ एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल 2016, उसमें इस चीज़ को क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि इंफॉर्मेशन जो है डेट की वो सबमिट की जाएगी और वहाँ से एक सर्टिफिकेट जनरेट करना होगा और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से, और वो सर्टिफिकेट को हमारे को एप्लीकेशन के साथ फाइल करना होगा एनसीएलटी में। तो गाइस यहाँ पे नाउ थिंग्स आर वेरी मच क्लियर दैट कि द स्पेसिफिक फंक्शन जो है हमारा इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज का, वो है इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना, है ना, डेट इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना, ठीक है, उसको वेरीफाई करना, उसको अपने साइट पे पब्लिश करना, और रिकॉर्ड से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है डेट, रिकॉर्ड ऑफ डेट, ठीक है, तो वो भी क्या करना, इशू करना। जो सबमिटर हैं, इंफॉर्मेशन जो सबमिट कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या फिर जो ऑपरेशन क्रेडिटर्स हैं, उनको सर्टिफिकेट को इशू करना होता है, बिकॉज दे हैव टू यूज दैट एप्लीकेशन वाइल filing an application for initiation of the insolvency resolution process. Now things are very much clear, and you can also check out the section of IBC, section 15 215 of the IBC code for detailed फंक्शन एंड इसकी ड्यूटीज क्या है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है आउटलाइन, सेक्शन 216 जो है, दैट आउटलाइंस द प्रोसेस फॉर सबमिटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। यस गाइस, बिकॉज entire aspects moves around submission of the information on the site or the portal of the information utility. Two things are becomes very much crucial, that key what will be the process of submitting the information on the portal of the information utility. So section 216 that clearly outlines the process step by steps, a requirement for submitting the informations on the uh, uh, information on the portal of the information utility, right? Now there are the regulations, जो कि हमने बात किया था कि आईबीबीआई की इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज रेगुलेशन 2017 है। तो ये रेगुलेशंस
के अंदर भी हमारे को डिटेल में सारी जानकारी मिलेगी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से रिलेटेड, कैसे इंफॉर्मेशन सबमिट करना है, कैसे उसको ऑथेंटिकेट करना है, कैसे सर्टिफिकेट ऑफ डेट को जनरेट करना है। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें हमारे को रेगुलेशंस में मिलेगा। तो गाइस यू कैन चेक आउट द रेगुलेशन ऑफ IBPI Information Utility Regulation 2017, and you can just if you wish to have this regulation, then just visit on the website of the IBPI. There you can get out the regulation as well, right? तो हम लोग इसके रेगुलेशन के ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। Now let's have a look at the compositions or the organizational structure of the information utility। जो information utility है इसका क्या organizational structure होने वाली है। तो first of all one board होगा, board of directors, जिनकी responsibility होगा for overall governance and strategic directions। Board of directors is on the top of the information utility, who will be responsible for the overall governance and strategic directions to the information utility। मैनेजमेंट टीम होगी इनकी अपनी, जो कि हैंडल्स करेंगे डे बाय डे ऑपरेशंस इंक्लूडिंग डेटा मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एंड कंप्लायंसेस। डेटा प्रोवाइडर्स जैसे कि एंटिटीज सच एज बैंक, financial institutions, corporate debtor who submit the financial informations। डेटा प्रोवाइडर्स जो कि होते हैं ना, डेटा प्रोवाइडर भी कौन हो सकते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हो सकते हैं, जिसके अंदर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, वो आ जाएंगे। उसके अलावा कौन हो सकते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, गुड्स प्रोवाइडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं कंपनी के साथ, है ना, अदर सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो सारे हो सकते हैं। Submit the financial informations on the portal of the information utility, right? तो ये हमारा बोर्ड हो गया, मैनेजमेंट टीम हो गया, डेटा प्रोवाइडर हो गया, और डेटा रेसिपिएंट होंगे। डेटा रेसिपिएंट कौन होंगे? डेटा रेसिपिएंट बेसिकली हो सकता है आईबीसी के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, वो भी वहाँ से डेटा रिसीव करते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। क्रेडिटर्स जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, दे कैन आल्सो बी रिसिपिएंट ऑफ द डेटा, and other stakeholders who access the information for the insolvency resolution process। और other stakeholders वो हो सकते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल्स हैं जो कि कंपनी किसी भी कंपनी के लिए रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना चाहते हैं, एंड दे जस्ट विश टू get the information pertaining to the default, they can also access the portal, है ना। उसके अलावा गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकते हैं वेरीफाई करने के लिए, बिकॉज देखो यार फाइनेंस बात बहुत सिंपल सी है, यहाँ पे कौन हो सकते हैं डेटा रिसिपिएंट्स, कैन बी एनीवन। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ दैट डेटा इंफॉर्मेशन। कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो सकता है, गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकता है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो सकते हैं, बिकॉज डेट की इंफॉर्मेशन हमारे को इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से मिलती है। Information utility is acting as the repository of information, and the information pertaining to the date which is available on the portal, that is authentic, accurate and correct। तो उस ट्रांसपेरेंसी है उसमें, तो anyone can access that date information, and एक रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो कैन बी एनी यूज ऑफ द डेट इंफॉर्मेशन और कैन बी एनी पर्सन, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को एक कोई कंस्टेंट मैनर में नहीं कह सकते कि हु कैन बी द रिसिपिएंट ऑफ द डेटा। यस, डेटा प्रोवाइडर हो सकते हैं, लिमिटेड लोग हो सकते हैं, बिकॉज जिसके अगेंस्ट डेट की इंफॉर्मेशन है, जिसने डेट ले रखा हुआ, जिसने कर्ज ले रखा है, ठीक है, कर्ज जो दे रखा है, वही तो वहां पे जाकर के अपनी कर्ज की इंफॉर्मेशन सबमिट करेगा, बट recipient can be anyone, ठीक है। Besides that, there will be the technology team, yes, because entire things IT team जो होते हैं, technology team, वो they will ensure security, integrity, efficiency, digital platforms, है ना। तो storage, retrieval, because there are the so many things, सभी चीज कह सकते हैं इंफॉर्मेशन यूटिलिटी पे तो ऑनलाइन होनी है, ठीक है। ऑनलाइन डेटा डेट की इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करना है, ऑनलाइन वेरीफाई करना है, ऑनलाइन हमारे को डिसेमिनेट करना है जिनको इन्फॉर्मेशन, तो इंटायर थिंग्स आर गोइंग ऑन द वर्चुअली। तो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी टीम का होना बहुत ज़्यादा आता है, बिकॉज दे हैव टू ऑल्सो इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा, डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना है, एफिशिएंट तरीके से वो उनकी पोर्टल काम करे उसको भी इंश्योर करना है ना। उनकी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है हमेशा वो ऐसा ना हो कि इनएक्टिव पड़ जाए,
काम ना करे, तो इस सारे चीज़ों को भी मतलब इंश्योर करना है। स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज बल्कि डेटा होने वाले हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, बल्क की डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे, बिकॉज जो एग्रीमेंट्स होंगे, अ, और भी बहुत सारे उससे रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे, तो वो सारे चीज़ों को स्टोर करना और उसका रिट्रीवल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि एक बार डेटा सबमिट हो गया है तो वो टाइमली रिट्रीवल हो पाए वहाँ से, बिकॉज रिट्रीवल नहीं हो पाएगी डेटा का तो फिर क्या ही पर्पस। तो टेक्नोलॉजी टीम जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का है, दे विल बी इंश्योरिंग ऑल दिस टेक्नोलॉजिकल स्टफ्स, है ना। तो गाइस, दिस इज ऑल्सो क्लियर नाउ। Now we will have a look at the step-by-step process for uploading the information on the information utility. देखो, जो जो भी व्यक्ति को इंफॉर्मेशन सबमिट करना है, ठीक है, अब आपको पता है कि हु विल सबमिट द इंफॉर्मेशन। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो बैंक्स हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, वो सारे जाकर के डेट की इंफॉर्मेशन सबमिट करेंगे इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के लिए। बट इंफॉर्मेशन यूटिलिटी पे डेट की इंफॉर्मेशन सबमिट करने से पहले आपको एक लॉगिन अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। लॉगिन अकाउंट बनाना, इट्स नॉट टू मच कॉम्प्लिकेटेड, वेरी इजी सी प्रोसेस है। आप इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के वेबसाइट पे विजिट करेंगे, यू कैन जस्ट सिंपली रजिस्टर देयर। तो फर्स्ट जो स्टेप्स है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की साइट पे विजिट करना पड़ेगा, एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट, यदि आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो तो एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर आप कर सकते हो, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है तो एज अ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आप अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करेंगे, ठीक है। तो डेटा प्रोवाइडर, दैट इज बैंक ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मस्ट रजिस्टर्ड विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। आप वहाँ पे पहले रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के लिए आपको वहाँ पे आपके पास डीएसी होनी चाहिए, या फिर आपके पास आधार नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके थ्रू आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, एंड दे नीड टू obtain credential, यूजर नेम एंड पासवर्ड टू एक्सेस द प्लेटफॉर्म। जैसे ही आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपकी एक यूनिक यूजर नेम हो जाएगा, आपकी पासवर्ड हो जाएगी, विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन लॉग इन देयर नाउ, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन हो गया अब हमारा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, डेटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन क्या है कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो डेट की इंफॉर्मेशन है, यू नीड टू सबमिट ऑन द पोर्टल ऑफ द IBPI। सो there is a format prescribed under the regulations. In that format, you have to prepare the data pertaining to the date, and then you can submit that date information on the portal of the IEO. So prepare the financial informations जो कि टू बी अपलोडेड, इंश्योरिंग इट इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट। गाइस, हाँ, तो एक चीज को हमारे को ये ध्यान रखना है कि जब आप डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं पर्टेनिंग टू द डिफॉल्ट, देन दैट शुड बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन, इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे नहीं दे सकते, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा, एंड दिस में इंक्लूड द लोन डिटेल्स, क्रेडिट एग्रीमेंट, डिफॉल्ट रिकॉर्ड, ऑल दीज थिंग्स you have to ensure. Once the data is prepared, then what next step is log into the platforms. आप इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की पोर्टल पे जाकर के लॉग इन कीजिए। यूज द यूज द प्रोवाइडेड क्रीडेंशियल, जो आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिला था इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के एंड से, उसको आप यूज करके लॉग इन कर जाएंगे, ठीक है। आप लॉग इन जब कर जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, डेटा एंट्री। यू हैव टू जस्ट एंट्री द डेटा। वहाँ पे आपको पोर्टल दी जाएगा, जिस जिस फॉर्मेट में आपने इंफॉर्मेशन को, डेट की इंफॉर्मेशन को तैयार किया था ना, वो चीज़ आपको वहाँ पे अपलोड नहीं करना है, वो आपको सेम फॉर्मेट ओपन कर दी जाएगी, एंड यू हैव टू जस्ट सबमिट इंफॉर्मेशन इन दैट पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑनलाइन। वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें है, हो सकता है कि कुछ एक समय में आ जाए कि आप जो डेट जिस फॉर्मेट में बनाया है, वो फॉर्मेट आपके पास हार्ड कॉपी में है, और वही सेम चीज़ वर्चुअली डिज़ाइन की गई है पोर्टल के ऊपर। तो हो सकता है कि वो अटैचमेंट को अपलोड कर दें, वो तो सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से कैच कर लिया जाए। बट आई थिंक ये अभी पॉसिबल हो नहीं पा रही है, आपको वहाँ पे मैनुअली जाकर के पोर्टल पे इंफॉर्मेशन को मेंशन करने हैं। बट यस, एग्जैक्टली इन द सेम फॉर्मेट इन विच यू हैव प्रिपेयर्ड योर डेटा इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये चीज़ है, डेटा एंट्री का काम आ जाएगा, वहाँ पे एंट्री करो। नेक्स्ट जो स्टेप्स आता है जी, वेरिफिकेशन का काम आ जाता है। वेरिफिकेशन किस चीज़ का, तो वेरिफिकेशन ऑफ
informations, verification of the data. The information utility have a verification process to ensure the authenticity and accuracy of द सबमिटेड डेटा. इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो है इनकी एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है. जो डेट की इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को सबमिट की जाती है उसको कम्प्लीटली वेरीफाई की जाती है. एंड देयर इज अ सर्टेन प्रोसीजर्स एज वेल टू वेरीफाई दैट इंफॉर्मेशन, टू ऑथेंटिकेट दैट इंफॉर्मेशन, सो कि जो है ऑथेंटिसिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन बना रहे. ठीक है. तो IU information utility may have its own prescribed procedures for verification of the data submitted on the portal, right? तो उस हिसाब से इंफॉर्मेशन यूटिलिटी उसको वेरीफाई करेंगे. एंड दिस कुड इन्वॉल्व्स क्रॉस चेकिंग विद द रिकॉर्ड्स. और क्या होता है, रिक्वायरिंग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एज वेल. यस यार, सिंपल सी बात है कि जब वेरिफिकेशन होगा, जो डेट की इंफॉर्मेशन सबमिट किया है, जब वेरिफिकेशन होता है तो उसको क्रॉस चेकिंग की जाएगी. जो डॉक्यूमेंट सबमिट की जा रही है उस डॉक्यूमेंट से उसको चेक किया जाएगा कि क्या वो सही इंफॉर्मेशन दी गई है या नहीं. यदि कोई डेविएशन पाई जाती है, कोई क्वेश्चन आती है, तो वो उसको पूछा जाएगा और उसको रिजॉल्व किया जाएगा. देन जा करके उसको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएगा जो कि सबमिशन से है. ठीक है. तो 6 जो स्टेप्स है वो सबमिशन. तो वंस द डेटा इज इंटर्ड एंड वेरीफाइड, सबमिटेड थ्रू द प्लेटफॉर्म. वेरीफाई हो गया तो उसको क्या करना है, सबमिट करना है. एंड द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी विल द इंफॉर्मेशन विल बी सबमिटेड इन फॉर्म सी. तो ये कुछ एक फॉर्म्स हैं गाइस. आपको ये चीज़ ना IBPI इंफॉर्मेशन यूटिलिटी रेगुलेशन 2017 में जाओगे तो यू विल बी गेटिंग फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, फॉर्म डी. ऑल दिस आर द फॉर्म्स अवेलेबल इन द रेगुलेशंस. तो फॉर्म ए जो है सर्टिफिकेट है. फॉर्म बी में आपको रजिस्ट्री, फॉर्म ए के अंदर एप्लीकेशन लगाते हैं वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. बी में सर्टिफिकेट होगा. सी में डेट की इंफॉर्मेशन को सबमिट किया जाएगा. डी में जो है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी आपको क्या रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, डेट डिफॉल्ट की जो सर्टिफिकेट है उसमें इशू कर देगी. तो आप उसको चेक कर सकते हैं रेगुलेशंस में. मैंने तो यहाँ पे सारे फॉर्म्स को मेंशन नहीं किया है बिकॉज आई वांटेड टू कीप दिस प्रेजेंटेशन वेरी मच सिंपल, शो कि मतलब हम लोग नॉर्मल बात ही कर सकें इसके ऊपर. स्टोरेज एंड एक्सेस. Now next step is storage and access. The submitted information is stored securely in the information utilities database. एक बार जब इंफॉर्मेशन सबमिट कर दिया गया है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पोर्टल पे, तो वो जो डेटा है उसको बहुत ही सिक्योर तरीके से क्या कर सकते हैं, स्टोर किया जाता है in the database of information utility. An authorized party, that is insolvency professionals, creditors, can access this information as needed for insolvency proceedings. Once the data is stored in the database of information utility, then any authorized persons या तो फाइनेंस या तो क्रेडिटर्स जिन्होंने इंफॉर्मेशन को सबमिट किया है वो, या फिर अदर देन दैट क्रेडिटर्स कैन ऑल्सो access the information. Insolvency professionals can also access the information in order to use that information in the insolvency proceedings. तो सिंपल सी बात ये है कि जो ऑथराइज पर्सन होंगे दे कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन. सो गाइस, ये तो हमारा था स्टेप नंबर 7, दैट इज फॉर द स्टोरेज एंड एक्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन सबमिटेड ऑन द पोर्टल ऑफ द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. Right, next the update and modifications, right? So if there are any changes or updates to the financial information, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि if there are any change or update to the financial information, the data provider can log in and modify the records accordingly. The information utility will maintain a history of changes फॉर द ऑडिट एंड कंप्लायंस पर्पस एज वेल. ठीक है. तो इसको अपडेट भी किया जा सकता है और चेंजेस भी किया जाता है एज एंड व्हेन नीडेड बाय द प्रोवाइडर. जब कोई डेवलपमेंट होती है, कोई चेंजेस होती है, तो वो जा करके उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा. सपोज लेट्स हैव अ एग्जांपल. सपोज करो कि हमने किसी को, आई एम द लेंडर, मैंने किसी को लोन दिया था. लोन दिया, 2 साल बाद वो पेमेंट हमारे को आना था. 2 साल बाद पेमेंट आया नहीं, हमारे को डिफॉल्ट हो गया. और इसी बीच में जब हमने लोन दी थी तो वो उसका रिपोर्टिंग कर दिया इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी का. अब डिफॉल्ट हो गया तो उसका भी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा कि जी यस, ये जो डेट है वो डिफॉल्ट इस पार्टी ने कर दिया. बट लेटर ऑन
2 and 3 मंथ लेटर वो क्या होता है, पार्टी आया कि सर आपने जो डेट दिया उस वक्त तो हमारे पास पैसे नहीं थे, नाउ आई एम जस्ट पेइंग योर डेट। वो पेमेंट हमारे को मिल गई, रिसीव कर लिया, तो क्या हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो जो डेट की डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ पे रिपोर्ट कर रखा है इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी को, उसको मॉडिफाई कर दिया बिकॉज नाउ द डेट्स आर सेटिस्फाइड, है ना। तो हमारे को अकॉर्डिंग टू द टाइम or according to the changes of the nature of the date we will have to just keep it modify changing, है ना, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। और सेकंड चीज यहाँ पे है कि सपोज करो कि जो लेंडर है उसको पैसा मिलने के बाद वो नहीं करता है जो इन्फॉर्मेशन सबमिट किया इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी पोर्टल पे, उसको जाकर के वो मॉडिफाई नहीं करते, तो क्या जो borrowers है कैन also go for the modification? Yes, they can also ask information utility and produce their the documentary evidence that this is the date which has been availed by me, but now इस टाइम में इसका डिफॉल्ट हुआ था, हमने पेमेंट नहीं किया था, बट नाउ दिस इज द स्टेटस कि मैंने इसका पेमेंट कर लिया एंड दिस इज द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, दिस इज द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, ऑन दैट बेसिस दे कैन ऑल्सो आस्क फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यस, ऐसा भी होता है, बिकॉज यार कई बार ऐसे होते हैं कि वो जो लेंडर है उसने उसको पैसे भी लिखे, भाई कर रहे हैं, नहीं करना क्या कर सकते हैं। तो वो चीज़ है, इसके लिए हम लोग आप चेक कर सकते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या दी गई है रेगुलेशन के अंदर, बट यस दिस इज वेरी मच लॉजिकल एज वेल। नाउ द कंप्लाइंस एंड रिपोर्टिंग। Information utility may generate reports and analytics based on the stored data. अब देखो क्या है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में जनरेट, इट्स नॉट मैंडेटरी बट जनरेट करेगी रिपोर्ट एंड एनालिटिक्स बेस्ड ऑन द स्टोर्ड डेटा which can be used for the compliances and डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, है ना। तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या करेगी, जनरेट करेगी रिपोर्ट एंड एनालिटिक्स जो इंफॉर्मेशन उनके पास स्टोर की गई है और उसको डिसीजन मेकिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकता है। द रेगुलर ऑडिट्स में बी कंडक्टेड टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड कंप्लायंस विद रेगुलेशंस। देखो दिस इज ऑन द पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी दैट कि जो इंफॉर्मेशन उनके पास स्टोर की गई है उसका इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना है, and information utility is very much supposed to do that, and if the information utility is unable to maintain the data integrity then this may cause the suspension of their licenses as well। So इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, they will have to maintain the integrity and compliance with all the applicable regulations which is on the information utility। So data integrity and compliance of regulation is very much important for the information utility in order to still in the play। कह सकते हो कि आपको फंक्शन करने के लिए ये सारी चीज़ को तो मेंटेन करना ही करना पड़ेगा। तो गाइज मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप्स प्रोसेस बताऊं कि हाउ वी कैन जस्ट सबमिट द डेट related information on the portal of the information utility। Now finally I have here a conclusion that key information utility play a very much crucial role in the insolvency and bankruptcy ecosystem in India by providing a reliable and transparent mechanism for storing and accessing the financial information। The statutory framework, uh, organizational structure and step-by-step procedures for uploading the information ensure that the system operate efficiently and effectively, contributing to overall goal of the resolving insolvency cases in timely and fair manner। So with this conclusion guys I end this video and hope कि मैं ये video आपके लिए कुछ ना कुछ तो information enhance करेगा ही करेगा। And if you think that this video is very much useful, please also circulate with your friends who is willing to work and who is working in the IBC domain, and please give us a thumbs up because that is the source of inspiration, and also subscribe if you want to get the regular update on any videos I prepared। And देखो मैं एक चीज़ तो बताऊँ, although as per description of the my channel that I have mentioned there I will be recording the videos for the various subject, but the as per my specializations I always intended to have a videos on the IBC के इर्द गिर्द ही हमारी videos होती हैं। And very soon I am going to have a videos on the Companies Act as well as the SEBI because I am the company secretary and I have a specialization in all those areas as well। तो उसके ऊपर भी videos होगी, but आप एक चीज़ तो मानो कि यदि आईबीसी से रिलेटेड आपको स्पेशलाइज वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस।